السلام علیکم، ویلکم ٹو کہانیوں کی دنیا۔ کیسے ہیں میرے سب ساتھی، نئے اور پرانے؟ سبسکرائب تو کر لیا ہوگا آپ نے، یقیناً ہمیں نہیں کیا تو جلدی سے بیل بٹن دبائے۔ آج کی کہانی جو آپ سننے لگے ہیں، ایسی کہانی آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ بہت ہی دلچسپ اور مزیدار کہانی ہے۔ تو اس کا کیا نام ہے، کچھ اندازہ ہے؟ آپ نے پڑھ لیا ہوگا اس کا نام بھی۔ جی، اس کا نام ہے خوفناک جزیرہ، جس کے اندر امرو اور ٹارزن کا بندر منکو، وہ تینوں موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اس جزیرے میں کیا کرتے ہیں اور وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ چلے آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ امرو کی خواہش پر ٹارزن نے سمندر کی سیر کا پروگرام بنایا۔ دوسرے روز یہاں موسم بے حد خوشگوار تھا۔ وہ صبح سویرے جنگل کے مغربی حصے میں واقع سمندری کنارے کی طرف روانہ ہو گیا۔ منکو، ٹارزن کا بندر، وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ تینوں سمندری کنارے پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی کو کھینچنے لگے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ مدہوش سے ہو رہے تھے، نیند انہیں آ رہی تھی کیونکہ موسم ہی اتنا خوبصورت تھا۔ ہواؤں میں لمحہ بہ لمحہ آہستہ آہستہ تیزی آتی گئی۔ منکو کشتی کے دوسرے سرے پر بیٹھا سمندری پرندوں اور موجوں سے دل لگا رہا تھا، جبکہ امرو اور ٹارزن کشتی کھینچنے کے ساتھ ساتھ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ دوپہر ہو چکی تھی، لیکن سورج کا آسمان پر کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر طرف سے سمندری ہوائیں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ان ہواؤں کے جھونکوں نے جھکڑ کی شکل اختیار کر لی اور وہ بہت تیز ہو گئے اور بادل اپنی سفیدی کھو کر سیاہی مائل ہو گئے۔ تو ٹارزن کو واپسی کے ساتھ ساتھ سمندری طوفان کا خیال آیا۔ ٹارزن کو پریشان دیکھ کر امرو نے اس سے پریشانی کا سبب دریافت کیا تو ٹارزن نے اسے سمندری طوفان کی اطلاع دی۔ امرو نے طوفان کی آمد سے پہلے واپس پہنچنے کا مشورہ دیا۔ ٹارزن نے تیزی کے ساتھ کشتی کا رخ موڑا تو منکو گرتے گرتے بچا۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس ہی آ بیٹھا۔ ٹارزن کشتی کو جنگل کی طرف واپس لے جانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، لیکن سمندر کی لہریں بہت تیز تھیں اور وہ اسے دور دور پھینک رہی تھی۔ اس طرح وہ اتنا آگے نہ بڑھ سکے جتنا وہ زور لگا رہے تھے۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ امرو کو زنبیل سے مدد لینے کی مہلت بھی نہ ملی۔ ان کی کشتی سمندر کے کناروں سے ادھر ادھر ہوتی رہی اور کبھی ادھر الٹتی کبھی ادھر الٹتی۔ امرو نے ایک چالاکی یہ کی کہ کشتی میں سے ایک مضبوط رسی اٹھا کر تینوں کو آپس میں باندھ لیا، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کشتی الٹ بھی جائے یا پھر کسی پہاڑی سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے تو وہ تینوں اکٹھے ہو جائیں اور ان کی لاشیں گمنام نہ رہ جائیں۔ طوفان بہت زیادہ بڑھتا گیا اور ان کی کشتی سینکڑوں میل دور جا نکلی۔ اس ناگہانی آفت کے باعث تینوں ہی اپنے ہوش و حواس کھو چکے تھے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے کہ ایک زبردست جھٹکا سا محسوس ہوا۔ ان کی کشتی طوفانی لہر پر سے اچھل کر کسی نامعلوم جزیرے پر الٹ کر گری۔ کشتی کے اچھلنے اور گرنے سے ان کے بندھے ہوئے جسم بری طرح اچھلے اور زور سے کشتی کی زد میں آئے اور زمین پر لگے، اور ان کی کشتی دور جا کر گری اور ایک کسی پتھریلے پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو گئے اور وہ پھر آخر کار بے ہوش ہو گئے۔ جب امرو کو ہوش آیا تو شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ امرو کا برا حال تھا، کمزوری سے اس کا جسم درد کر رہا تھا کیونکہ بار بار وہ کبھی کسی چیز سے ٹکرا رہے تھے، کبھی کسی چیز سے، کشتی سے۔ وہ تھوڑی دیر تک وہیں ساکت پڑا رہا اور خاموشی سے ادھر ادھر آسمان کو گھورتا رہا۔ پھر اسے منکو اور ٹارزن کا خیال آیا تو اس نے نگاہیں گھما کر آس پاس دیکھا تو منکو اور ٹارزن قریب ہی رسی میں جکڑے بے ہوش سے پڑے تھے۔ امرو کو ہوش ذرا آیا تو اس نے زنبیل کا خیال آیا۔ اس نے بڑی کمزوری کے عالم میں زنبیل کو ٹٹولا اور زنبیل کو اپنی جگہ موجود پا کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں ایک سفید سیاہ گاڑھا مادہ بھرا ہوا تھا۔ امرو نے لیٹے ہی لیٹے اس کا ڈھکنا ہٹایا اور اس کے چند قطرے اپنے منہ میں ڈال لیے۔ سیاہ مادے کی زبان پر پڑنا ہی تھا کہ امرو کی کھوئی ہوئی توانائی اور طاقت بحال ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر سب سے پہلے ٹارزن اور منکو کو رسی سے آزاد کیا، پھر انہیں ہوش دلا اور سیاہ مادہ ان کے بھی منہ میں ڈالا اور وہ بھی تھوڑی دیر بعد حشاش بشاش ہو گئے۔ انہوں نے گھوم پھر کر جزیرے کا جائزہ لیا، اونچی اونچی پہاڑیوں پر چڑھ کر دیکھا تاکہ آبادی آسانی سے نظر آئے، لیکن وہاں کوئی آبادی نہ تھی، نہ آدم نہ آدمزاد۔ ٹارزن بڑا پریشان تھا کہ وہ لوگ کیسے ویران جزیرے پر آ پھنسے ہیں کہ جہاں ان کے علاوہ کسی انسان چرند پرند تک
किसी सूरत में नजर नहीं आ रहा, और ये भी मालूम नहीं कि वो जंगल से कितनी दूर निकल आए हैं। वो वापसी की कोई तदबीर भी कर सकते हैं कि नहीं। उमरो चाहता तो हवाई तख्त निकाल कर या उड़न कालीन निकाल कर लेता, लेकिन वो इस वीरान जजीरे की सैर करके उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था कि ये सरसब्ज़ व शादाब जजीरा वीरान कैसे हुआ। वो टार्जन के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते उन्हें भूख का एहसास हुआ तो टार्जन ने मिंकू को कांधे से उतारा और फलों से लदे दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार मिंकू, भूख से बुरा हाल है, कुछ फल जल्दी से तोड़ लाओ, दरख्त बहुत ऊंचे हैं, इसलिए तुम ही जाओ। मिंकू ने खी की हामी भरी और दौड़ता हुआ अपने करीबी दरख्त पर चढ़ा और उसने आम की शक्ल के फल लिए। और मिंकू ने एक फल तोड़कर फिर उसे ख्याल आया कि कहीं वो फल कड़वा ना हो, तो उसने फेंक दिया। और उसे पहले उसने कहा, चलो फिर देख लेता हूँ, दांतों से चखता हूँ। उमरो और टार्जन उसको देख रहे थे। उन्होंने देखा कि फल खाते ही मिंकू ने एक जबरदस्त झुरझुरी ली और दूसरी लम्हे वो किसी कटे हुए शहतीर की मानिंद ऊंचे दरख्त से नीचे की तरफ आ रहा था। ये देखते ही टार्जन और उमरो बैक वक्त आगे दौड़े और उन्होंने उसे मिंकू को नीचे गिरता देखा तो उसे गोद में ले लिया। लेकिन ये क्या, ये गोश्त पोच का मिंकू तो हरगिज ना था, ये तो पत्थर का भारी भरकम खिलौना सा था। टार्जन की आंखें देखकर हैरत से फैल गईं। उसने तो अपने सामने मिंकू को दरख्त पर चढ़ते देखा था, फिर एक गोश्त पोस्ट का मिंकू पत्थर में कैसे बदल गया? ये सवाल बार बार टार्जन के दिमाग में किसी कीड़े की तरह कुलबुला रहा था। उमरो ने टार्जन की परेशानी को भांप लिया और बोला, टार्जन, फिक्र ना करो दोस्त, ये वीरान जजीरा लगता है, जादुई जजीरा है। इसकी सरसब्जी और शादाबदी और वीरानी का राज भी जादू ही में छुपा हुआ है। तुमने भी देखा कि मिंकू ने दरख्त से फल चखा और फल को चखते ही उसने झुरझुरी ली और नीचे आ गिरा। तो समझ लो कि यहाँ की हर चीज जादू की है, किसी चीज को हाथ ना लगाना वरना पछताओगे। टार्जन ने कहा, लेकिन उमरो, मिंकू का क्या होगा? हम इसको कैसे दोबारा ठीक करेंगे? कहकर टार्जन की आवाज रोने वाली हो गई। उमरो ने हल्की मुस्कुराहट से टार्जन को तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मिंकू को मैं असली हालत में लाऊंगा। यहाँ से तुम्हारा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। तुम देखना कि मैं कैसे यहाँ के तमाम जादुओं का खात्मा करता हूँ। ये कहकर उमरो ने टार्जन के हाथ से मिंकू का बेजान मुजस्मा, वो बुत सा ले लिया जो पत्थर में तब्दील हो गया था, और किसी ऐसे गार को तलाश करने लगा जहां मिंकू के पथरीले जिस्म को महफूज रखा जा सकता। वो सब कुछ उन्होंने इसलिए किया था कि मिंकू का जिस्म पत्थर में तब्दील होकर बहुत भारी हो गया था और वो उसको हर जगह उठाए नहीं फिर सकते थे, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो एक महफूज गार तलाश करने में कामयाब हो गए। उन्होंने मिंकू का जिस्म गार में रख कर गार का मुंह पत्थरों से अच्छी तरह मजबूती से बंद कर दिया और आगे बढ़ गए। मिंकू की कमी टार्जन को बुरी तरह महसूस हो रही थी, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। आमने सामने तो पहाड़ से पहाड़ थे, लेकिन जादुई उनकी ताकत के मुकाबले में टार्जन की ताकत कुछ भी ना थी। उमरों ने जंबील से गर्म और ताज़ा खाना निकालकर टार्जन के साथ खाया। खाने से फारिग होकर उसने अपनी नूरानी अंगूठी निकाली और सुराख को तेज रोशनी में रख दिया। दूसरे ही लम्हे एक नन्हा सा जिन हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ वहां हाजिर हुआ, जो कि उमरों के इशारे से निकला था। उमरों ने उससे मिंकू के हालात बयान करके उस जादुई कुव्वत के मालिक का नाम पता दरियाफ्त किया है। नन्हे जिन ने उसके नाम और ठिकाने की निशानदही की और उमरों के हुक्म पर वापस चला गया। उमरों टार्जन के हमरा लेकर इस पहाड़ी की तरफ तलाश में निकला जहां सरकटे देव का मस्कन था। पहाड़ों में काफी तलाश करने के बाद उन्हें पहाड़ी मिल गई। ये पहाड़ी चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई थी और इसके गिर्द सैकड़ों पत्थर के बुत बिखरे हुए थे। इनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब ही थे। वहीं पर सैकड़ों खोखले दरख्तों के तने। हैरत अंगेज बात यह थी कि इन दरख्तों के तने तो नीचे से खोखले थे, लेकिन ऊपर से दरख्त फलदार और सब्ज़ शादाब थे। बहरहाल ये तो वो जान ही चुके थे कि जादुई चक्कर है, इसलिए उन्हें इस पर जरा भी हैरत ना हुई। अभी वो वहां से खड़े हुए थे पहाड़ी के पास ही कि गार का दरवाजा ही तलाश कर रहे थे कि चार देव किसी आफत की तरह उन पर टूट पड़े। टार्जन और उमरो दोनों इस अचानक और नई मुसीबत के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थे, लिहाजा मात खा गए और उन्हें शिकस्त हुई। चारों देव इसको लेकर करीबी गार के दरवाजे पर, जो कि पहाड़ी घास के मैदान के नीचे था, ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने इन दोनों को एक कवि हैकल देव के सामने ले जाकर फेंक दिया और खुद गायब हो गए। उमरों ने जल्दी से खड़े होकर जंबील की तरफ हाथ बढ़ाया तो सर कटे देव ने कोई मंत्र पढ़कर उन पर फूंक दिया, जिसकी तासीर से वो दोनों जहां थे, जिस हाल में थे, वहीं रुक गए। इसके बाद सर कटे देव ने जिस
का आंखों के ऊपर से माथा समेत सर ही गायब था, मतलब आधा सर उसका था ही नहीं। उम्र अय्यार से एक अजीब व गरीब उस पर मुस्कुराहट फेंकी। उम्र अय्यार, मैं तुझे जानता हूँ, तू क्या चाहता है कि तू मुझे अपने जादुई थैले से शिकस्त दे दे, अपनी जंबील से। तू मुझे मात देना चाहता है, लेकिन मैं तुझे इसका मौका हरगिज ना दूंगा। तूने जादूगर कौम को नाकों चने चबवाए हुए हैं, लेकिन याद रखो, अब वक्त खत्म हो गया। अब तू मेरे मुंह का निवाला बनेगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। उम्र जिसकी जबान बोलने के काबिल थी गुर्रा कर बोला, ओ खबीस सर कटे मलून देओ, अगर तुझे अपनी बहादुरी पर इतना ही नाज है, तो इतना ही बहादुर है तो मुकाबला कर, मैं जंबील का सहारा न लूंगा। तू भी वादा कर अपनी जादुई कुव्वत इस्तेमाल ना करेगा, फिर देख कौन बहादुर है और कौन बुज़दिल। फिर जरा रुक, मैं इतना भी डरने वाला नहीं हूं कि तू आसानी से मुझे खा ले, जो तेरे हलक से उतर जाऊं। मैं तेरे हलक में आग की चिंगारियां भर दूंगा और तुझे मार दूंगा। टार्जन ने कहा कि अगर ऐसे ही आमने सामने आकर मुकाबला करने की बात है तो मैं तेरा करूंगा। तू बुज़दिल है, जो तूने हमें जादुई हिसाब में कैद किया हुआ है। ये सुनकर सरकटे देव ने मंत्र पढ़कर फूंका तो टार्जन और उमरो असली हालत में आ गए। उमरो ने टार्जन को ताकीद की कि जब तक मैं न कहूँ वो पीछे से ना बिल्कुल भी मुड़े, बल्कि मेरा मुकाबला करे, और मैं खुद ही निमट लूंगा। लिहाजा मजबूरन टार्जन को खामोश होना पड़ा। इसके बाद उमरो भारी भरकम सांड जैसे जिस्म वाले देव के सामने डट कर खड़ा हुआ और उसे ललकारने लगा। उमरो ने उसे ऊंची आवाज में कहा, देव को मुश्तिल किया, ऊंची ऊंची उसे आवाजें दी। वो सांड की तरह झूमता हुआ देव आया, लेकिन उमरो कब उसके हाथ आने वाला था। वो नीचे झुका अपनी पतली पतली टांगों से और आगे निकल गया। इस हमले की नाकामी के बाद उमरो की फलक शिगाफ कह के देव पर पलटा। फिर उसने यही हरकत की और हड्डियों का सुरमा बनाने को था। वो उमरो अगर वहां से ना गुजरता तो वो उसे मार देता और उसकी हड्डियों का सुरमा बना देता, लेकिन उमरो वहां से निकल गया। वो पागल और बिखरे हुए हाथी की तरह देव इधर उधर चपट रहा था और हर दफा उमरो एक छलांग मार के कभी यहाँ और कभी वहां जाता, लेकिन उमरो गाफिल ना था। वो फौरन दौड़कर टार्जन को लेता हुआ दूर जा गिरा। इतने में देव जो कि उम्र पर छलांग लगा चुका था, वो चारों शाने चित जबरदस्त धमाके की आवाज से गार के पथरीले फर्श पर गिरा। अर्श के गिरने से गार और वो पहाड़ी जिसके दामन में गार था लरज गई। चोट बहुत ज्यादा लगी, लेकिन सर कटा देव बर्दाश्त कर गया और झूमता हुआ दोबारा उठकर उम्र पर हमला किया। उम्र के मुसलसल कह के उस पर गुस्सा को बढ़ा रहे थे और उस पर नश्तर की तरह बरस रहे थे। वो उसे मुसलसल गुस्सा उम्र के कह के दिला रहे थे। तौहीन का एहसास उसे हो रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था वो क्या करे। उम्रों ने जब उस बिखरे हुए को देखा तो चीख मारकर टार्जन से बोला, टार्जन तुम पहाड़ी पर चले जाओ, जैसे ही ये देव मेरे पीछे बाहर आए तुम पहाड़ पर से पत्थर लुढ़का देना। ये सुनकर टार्जन गार से निकलकर तेजी के साथ पहाड़ी की तरफ चला गया और उम्र लड़ाई के लिए बदस्तूर तैयार था। वो कभी देव उसके ऊपर इधर से हमला करता, कभी उधर से, कभी वो नीचे गिर जाता, कभी उम्र मुकाबला जारी रहा। कभी वो एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, दीवारों से टकरा रहे थे गार की, जिसकी वजह से गार बुरी तरह हिल रहा था। आखिर इसी कश्मकश में उम्रों का धक्का देने में उसे कामयाब हुआ सरकटे देव को, और सरकटा देव जैसे ही नीचे गिरा तो उम्रों ने पूरी कोशिश की और फुर्ती से भागता हुआ अपने पतले जिस्म के साथ गार से बाहर निकल गया। जब देव को जरा होश आया और उसने देखा कि उम्रो वहां गार में मौजूद नहीं है, वो तेजी से गार से बाहर की तरफ भागा, जहां ऊपर पहले ही टार्जन और उम्रो तैयार बैठे थे उस पर पत्थर बरसाने के लिए, और उसको देखते ही उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हाथों से पत्थर इसलिए बिल्कुल ही ना बच सका। उम्रो और टार्जन बदस्तूर इस पर पत्थर बरसा रहे थे, यहाँ तक के सरकटा देव पत्थरों की कब्र में दफन हो गया। उसके मरते ही वो तमाम बुत जो पत्थर के बने हुए थे इंसानी शक्ल इख्तियार कर गए। इनकी असली हालत देखकर टार्जन ने उम्रो का हाथ पकड़कर मिंकू की तरफ दौड़ लगा दी। तेजी से वो वहां पहुंचे। उन्होंने गार का मुंह खोला तो देखा कि मिंकू एक कोने में बैठा रो रहा था। टार्जन दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे गोद में उठा लिया। टार्जन को देखकर मिंकू रोना भूल गया और खीखी करके हंसने लगा। वो गार से बाहर निकले तो बेशुमार जीते जागते लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। उनसे रुखसत होकर उमरों ने हवाई तख्त निकाला और उसे जंगल की तरफ परवाज का हुक्म दिया। तख्त अफ्रीकी जंगल की तरफ रवाना हुआ और मिंकू तख्त पर से नीचे की चीजें देख देख कर हैरान होता रहा। तो थी ना दोस्तों हमारी ये कहानी दिलचस्प, आपको बहुत मजा आया होगा। तो अब हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।